all for waiting. Hi, everyone. I'm Insia Kara from Mind Matters, and I'd like to welcome you all to this Q&A session on media dynamics and current outlook. So if you're new here, Mind Matters is actually a training and consultancy startup aiming to empower minds. And it's great to have you all here. Thank you all for joining in. I'd like to welcome my guest Hamza Rahman, who will be talking more on the media crisis, the media outlets, and more about sports broadcasting. So hi Hamza, welcome, and it's great to have you here. Assalamualaikum. Thank you very much for having me on board today, and I hope this will be a good session. Today, as we have discussed previously, कि हमारी जो आज डिस्कशन होगी that will be revolving around the media dynamics and the current issues. क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पे हैं अक्सर लोगों के लिए बड़ा एक नई टॉपिक होता है for the media dynamics. It is a very new field actually, and the crisis which media is facing. So people does not know the background of it. So we decided to come up and let's discuss some of the aspects what's actually happening in the current arena. So before jumping into it and starting the discussion, let me introduce a little more about myself. Actually, I've been associated with this industry, the media industry, for the last more than 11 years. I started my career with the Geo, and I was handling one of the main leads for the Geo marketing. There were two units like Geo Super and Geo News, and I was heading as a part of the co-head with for these two departments, for Geo News and Geo Super marketing. So I was responsible for all the sales, which is actually the commercials actually broadcasting. So my responsibility is to tap those brands and get on board and get the advertisement for those two channels. So I was associated with the sports in 2011 World Cup as well. I also remain associated with one of the local media house, which is name of Apna News, Uptak News, and ADXM. And for the last almost more than 2.5 years, I've been associated with 10 Sports in Pakistan. The 10 Sports, it is a very small, we have a very small staff here. It's the only work we do here for 10 Sports is that we used to broadcast the international matches, including the football, cricket, and all the major leagues around the globe, which is happening because 10 Sports in Pakistan is under the umbrella of Sony Group. So this is one of the little introduction regarding my background of 11 years with the different media houses. Besides that, I was also involved in teaching with one or two universities. I was in my recent course was with the media with the College of Management and Arts at PFT at Karachi. So this is a little introduction from my side, please. Ji. Okay, thank you, Hamza. So let's just dive right into it. So let's start off with the very basic. What's the role of media in our personal lives? A little coming to this is a very, whenever we talk about the media, we need to understand how it kickstart. क्योंकि what's happening around कि media की field इतनी dynamic है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि media का role क्या है. Media को लोग बड़ा उनकी media पे आई हुई बात. देखिए अगर हम लिटिल पास्ट में जाए ना तो मीडिया का रोल इट्स बी ऑलवेज देयर बट इट्स रिवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, हम अपने बड़ों को देखते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि वो हमारे ग्रैंडफादर्स और हमारे घरों बड़े वो अखबार की आदत पढ़ने की, मुताले की आदत बहुत आम थी. दे यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, और जो सारी न्यूज़ थी वो कंपाइल होती थी, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द ग्लोब. हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस न्यूज़ पासिंग हैज डेवलप्ड एंड बिकम वेरी फ्रीक्वेंट एंड वेरी फास्ट. रेडियो का जमाना भी एक बड़ा अहम जमाना गुजरा, जब लोग रेडियो को ट्यून इन किया करते थे और लोग रेडियो को सुना करते थे, और फिर वो तमाम खबरें एमडब्ल्यू वेव्स के ऊपर ट्यून इन करके लोगों के पास इंफॉर्मेशन गैदर होती थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आज दौर जहां बैठे हैं वो बड़ा स्मार्ट मीडिया का दौर है और बड़ा स्मार्टफोन्स और डिजिटल मीडिया का दौर है. तो आज इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली हमारे तक पहुंचती है. जो इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है और इंफॉर्मेशन आती भी बहुत ज्यादा है. यानी हम इतनी जगहों से एक ही खबर को सुनते हैं कि स्पेसिफिकली समझ भी नहीं आता कि किस न्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, और एक न्यूज़ ब्रेक करने की दौड़ भी आज के दौर के अंदर शामिल हो गई. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन की जो इनफ्लो है वो बहुत बढ़ गया. सोशल मीडिया कहते हैं वो एक कॉमन सी बात है कि टू मच नॉलेज इज डेंजरस. तो वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें आजकल मिलनी शुरू हो गई अपने टेलीफोन्स के जरिए, अपने इंफॉर्मेशन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और एक दूसरे को डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, स्मार्ट स्नैपचैट्स हो गई, लोग फॉरन एक दूसरे की इंफॉर्मेशन कहीं आती है, द इंसिडेंट जस्ट हैपेंड एंड विद इन सेकंड्स इट इज ऑल ओवर योर डिजिटल मीडिया. और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम टेलीविजन कहते हैं, क्योंकि देखें मीडिया के बहुत सारे अनासिर हैं और बहुत सारे पार्ट्स हैं. जिन पार्ट्स को अगर हम देखें तो उसमें टेलीविजन है, उसमें रेडियो है, उसमें डिजिटल मीडिया है, उसमें मैगजीन है, उसमें प्रिंट मीडिया है. तो ये सारे
इज अ पार्ट ऑफ द मैस मीडिया, जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है लोगों तक। तो वो इस दौड़ ने वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी खत्म कर दिया। मतलब हम फौरी तौर पे खबर आती है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी वो खबर ब्रेक करने की दौड़ लग जाती है और वेरिफिकेशन नहीं होती। और बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे कि खबर जो है वो टेलीविजन के ऊपर आगे ऑन एयर हो गई, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, बाद में उसकी तस्हीह और उसकी माजरत जो है वो टेलीविजन चैनल ने रन की। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे रहा कि लोगों ने वेरिफिकेशन खत्म की। फिर देखें उस रोल ऑफ मीडिया की जब बात करते हैं ना, इसका रोल बड़ा इमेंस है। वो इमेंस क्यों है कि मैं और आप मीडिया देखते क्यों हैं? खाली खबरों के लिए नहीं देखते, हम अपने आप को लाइटर नोट के ऊपर ले जाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, डे टू डे जो अर्बन स्ट्रेस लाइफ है उसको लो डाउन करने के लिए हम मीडिया को यूज करते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट अगर हम इसको बात करें तो वो हमारे लिए एक पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट है कि हम अपने मर्जी का कंटेंट ट्यून इन करते हैं, हम टेलीविजन क्यों ट्यून इन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि 1 से लेकर 60 तक तो अगर आप केबल टेलीविजन पे जाएं तो आपको न्यूज चैनल्स ही नजर आते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बहुत कम है। लेकिन जो बेसिक ग्लोबल यूज ऑफ मीडिया है वो पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट है। लोग टेलीविजन देखते हैं अपनी मर्जी का कंटेंट मूवीज के लिए। आज देखें उन मूवीज के लिए स्मार्ट टीवीज आ गए, स्मार्ट टेलीविजन के साथ डिजिटल टेलीविजन आ गए, फिर नेटफ्लिक्स आ गया। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको रिलैक्स डाउन करने के लिए, टू काम डाउन एंड टू हैव द कंटेंट व्हिच यू वांटेड इज ऑल ऑन योर फिंगर टिप्स। दिस इज द, फिर आप फैस्ट पे देखें तो मीडिया का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहा वो कंपेनियनशिप के हवाले से रहा। और कंपेनियनशिप के लिए इसलिए रहा कि आप जिस क्लब लीग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, आपने देखा होगा फुटबॉल फैंस और ये लोग जो फुटबॉल के साथ या डिफरेंट क्लब्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी कितनी डाई हार्ड फैनशिप और फॉलोइंगशिप है। मतलब एक रिसर्च आई वाज गोइंग थ्रू एंड आई केम टू नो दैट द पीपल इन द हॉस्पिटल्स वर अ डाई हार्ड फैन ऑफ द वन फुटबॉल क्लब एंड व्हेनेवर दैट फुटबॉल क्लब्स, अब वो बड़े सीरियस कंडीशन के पेशेंट्स थे, जब उनका फुटबॉल क्लब का कोई इतना पॉजिटिव गोल होता था या मैच जीतना शुरू होते थे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स एंड दे स्टार्टेड टू शोइंग द इंप्रूवमेंट। दिस इज द रोल एंड द पावर ऑफ द मीडिया। इज आज अब देखें कि दीनी लिहाज से भी और इस्लामिक लिहाज से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कितनी ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप सोशल मीडिया पे देखें, हर बंदा हर फिक्रे का इंसान अपने जिसको फॉलो करता है कि जिससे इंस्पायर्ड है, उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर वो साहब या वो जिनको फॉलो करता है वो अवेलेबल है। फिर सबसे बड़ी बात है, ये तो हम पहली पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी पार्ट जो हम बात ये कर रहे हैं कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो फिर आप देखिए उसको डिग आउट करते हैं। कोई खबर आती है, हम आजकल पाकिस्तान के अंदर तो क्योंकि देखें एक एरा हमने रिसेंटली देखा जो बड़ा डिप्रेसिव एरा था कि रोज हमें खबर मिलती थी कि आज यहाँ ब्लास्ट हो गया, आज यहाँ बॉम्ब हो गए। और पेशावर के अंदर तो खबर आना एक ऐसा हो गया था कि पीपल लाहौर वेट करते थे कि आज अभी तक खबर आई नहीं कि ब्लास्ट नहीं हुआ 9-10। इसी तरह कराची के हालात भी एक तरह इतने वर्स्ट हो गए थे रिसेंट पास्ट के अंदर कि 9 to 10 डेली डेथ्स, टारगेट किलिंग्स रिपोर्ट होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह द टाइम हैज चेंज। लेकिन क्या था कि वो इतना, ये न्यूज ग्रोथ क्यों हुई पाकिस्तान में? जो लोग सवाल करते हैं ना कि न्यूज मीडिया इमेंसली ग्रो क्यों कर गया, क्योंकि ग्लोबली हमारे पास खबरों की नौयत बहुत मुख्तलिफ है। जब आप कराची की खबर की बात करते थे ना, क्योंकि हम इस वक्त लोकल डायनेमिक्स ऑफ द मीडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें खबर बड़ी मुख्तलिफ मिलती थी। टारगेट किलिंग्स मिलती थी, हमें एक्सटॉर्शन की न्यूज़ मिलती थी। पंजाब के अंदर आप जाते थे तो खबरों की नौयत, क्योंकि रीजनल वाइज न्यूज बड़ी डिफरेंट हो जाती है, पंजाब के अंदर जो खबर थी वो बड़ी डिफरेंट थी। वहाँ शौहर ने बेगम के ऊपर तेजाब फेंक दिया और इस किस्म के घरेलू झगड़े, किसान और भैंस चोरी होने के ऊपर भी खबरों की नौयत। बलूचिस्तान में चले जाते थे तो वहाँ एक लिबरेशन वॉर थी जहाँ BLA का रोल बड़ा था, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से खबरें थी। तो पाकिस्तान वाज फुल ऑफ द डाइवर्सिफाइड न्यूज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो न्यूज एक्सपायरी भी बहुत ज्यादा थी। इसी तरह आप ग्लोबल मीडिया में चले जाए ना, इंटरनेशनल मीडिया में, तो वहां पे खबर बड़ी डिफरेंट है। वहां पे खबर एक स्टार को लेकर है, वहां पे खबर एक प्रेसिडेंट ट्रंप भी आज एक्टिव हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले ओबामा की न्यूज़ भी थी तो बड़ी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी, एक खबर 2-2-3 दिन चली जाती थी। स्कूल टारगेटिंग और जो मैसिव किलिंग्स और मैसेकर्स शुरू हुए न्यूजीलैंड के अंदर और इंग्लैंड के अंदर और US के अंदर, ये भी लेटर आफ्टर 2009 हमने देखा ये चीजें डेवलप। इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लोग इतनी ज्यादा रिगरसली फॉलो नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि हमारे एक लोकल कंडीशन ऐसी डेवलप हुई कि लोगों का इंटरेस्ट ऑन द न्यूज बेसिस बहुत बढ़ा। इस इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से न्यूज जॉनरा के अंदर जो हम कहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लक्स हमें बहुत ज्यादा नजर आया और नंबर ऑफ न्यूज चैनल्स खुले। और न्यूज चैनल क्यों खुले कि उन लोगों का न्यूज, उनका जो बेसिक एम था वो न्यूज चैनल खोलना बिल्कुल भी नहीं था। है क्या कि एक आदमी का एक काम है, ही इज अ बिग इन्वेस्टर और उसके पास पैसे हैं, उसके पास 6-7-8 करोड़ रुपए भी एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो उसने सोचा क्यों ना यार मैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को लेकर आ जाऊं। और उस इन्फ्लुएंस को यूज करने की वजह से उसने क्या किया कि उसने ऑप्ट कर लिया एक न्यूज चैनल का लाइसेंस
और उसने एक छोटा सा चैनल खोल लिया, उसको वो कॉरिडोर्स ओपन मिल गए, वो जो डिफरेंट कॉरिडोर्स थे टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट हाउसेस, कि उसको एक एक्सेस अवेलेबल हो गई। तो व्हाट वी सॉ कि वो न्यूज़ के नंबर ऑफ चैनल्स हमें ग्रो होते हुए चले आ गए। लेकिन ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ थी विच वाज विद द पैसेज। जैसे जैसे हालात सही हुए, जैसे जैसे कंडीशंस बेहतर होनी शुरू हुई, और आज और पीपल बिकम फेड अप ऑफ दिस टॉक शोज। एक ज़माने में, क्योंकि 2011-12 में आप जियो के मेन स्ट्रीम चैनल्स के शोज देख लें, जियो के मेन प्राइम टाइम के स्लॉट्स के शोज देख लें, जिसमें कामरान खान करते थे, हामिद मीर करते थे, ये नंबर ऑफ चैनल्स के डिफरेंट बड़े बड़े एंकर्स हैं, नॉट टू नेम देम ऑल, ये लोग इनकी व्यूअरशिप ट्रेंड अगर आप देखेंगे दैट वाज मैसिव। लेकिन विद द पैसेज हमने देखा, जो हम मीडिया के लोग हैं, कि पाकिस्तान व्यूअरशिप ट्रेंड जो है ना वो बड़ा चेंज हुआ, कि जो न्यूज व्यूअरशिप थी वो ड्रामेटिकली आफ्टर 2015 हमें डिक्लाइन होती हुई नजर आई, और एंटरटेनमेंट के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई। तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट था जो विद द पैसेज ऑफ टाइम नजर आया। फिर लोगों का, क्योंकि न्यूज इन्फ्लक्स इतना ज्यादा था, कि वो इंटरप्रिटेशन बहुत, आप अखबारों में देखें एडिटोरियल्स आते हैं, किसी खबर के हवाले से इंसाइट आती है, जो डिफरेंट सहाफ़ी हैं वो अखबार के अंदर कॉलम्स लिखते हैं। जिन लोगों को न्यूज क्रेज था वो उन कॉलम्स के बेसिस के ऊपर इंटरप्रिटेशंस देते थे, क्योंकि वो आपने सुना होगा प्राइम टाइम शोज के अंदर भी अखबारों वाले एडिटोरियल्स आ गए कि नजम सेठी साहब कहा करते थे कि मेरी चिड़िया ने मुझे ये खबर दी है। तो वो चिड़िया जो थी वो इंसाइट्स थी, वो सोर्सेस थी, और वो सोर्सेस की बुनियादों के ऊपर कयास सराइयां होनी शुरू हुई। जो प्राइम टाइम में आप शाहिद साहब का शो देख लें, उनको वो मजबूरन जाना पड़ा, मुल्क से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि कयास सराइयां बहुत बढ़ गई थी, और फिर स्टेट भी एक्शन में आती है और वो इदारे भी एक्शन में आते हैं जो इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो इंटरप्रिटेशंस, कंपेनियनशिप, एंजॉयमेंट, तो ये तो डिस्कशन का एक बेसिक एंगल है जो हमने पाकिस्तान डायनामिक्स को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान मीडिया इज वेरी डिफरेंट और ग्लोबल मीडिया से बड़ा डिफरेंट है। और स्पेसिफिकली क्योंकि न्यूज इन्फ्लक्स इस मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और क्वालिटी न्यूज हमें लैक करती है। एक चीज जो बहुत लोग हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान मीडिया इमेच्योर है, बिल्कुल ये बात है कि इमेच्योर है, ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में लगा रहता है, चीजों की दौड़ में लगा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ देखें और इस एंगल को हम अपने एक पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन के ऊपर लेके चले जाएं, हम अपने क्योंकि मेजॉरिटी एक सब कॉन्टिनेंट जो था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बोथ, तो हम आज जब इंडियन न्यूज चैनल को देखते हैं और हम उनके हालात चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, we are still quite mature. Yes, we need an improvement on different angles, but yes, we are quite mature. आप देखें वो कबूतरों की खबरें और वो टट्टी दिल की खबरें, किसी जासूस भेज दिया उन्होंने और तमाम चीजें भेज दी, तो इमेच्योरिटी लेवल। और फिर जो उनका वो गौसम है, एक बंदा प्राइम टाइम का, मुझे उसका नाम भी भूल गया, जो क्लासेस, वो उनकी आपकी बातें सुने तो आप देखिए कि उनकी कितनी फॉलोशिप है। अगर आप इंडियन उन चैनल्स की व्यूअरशिप निकालें कि वो आवाम को किस एंगल में लेके जा रहे हैं, सिर्फ हेट्रेड टीच कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हेट्रेड टीच होता है, लेकिन वी नीड टू कर्टेल इट डाउन। एंड आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम द मीडिया विल इंप्रूव, द हाउसेज विल इंप्रूव, द क्वालिटी विल इंप्रूव। द रीजन बीइंग कि अब आगे जाके भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन क्योंकि हम करेंगे इसके ऊपर कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस में देखने शुरू करती हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ क्यों रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों हुआ, सडन क्यों हुआ। तो वील कम टू दैट एज वेल। लेकिन जो आपकी बात है, जो कमिंग बैक टू द बेसिक ऑफ द क्वेश्चन कि हमारी जिंदगियों में क्यों अहम है, तो वो इसीलिए अहम है कि हर एंगल में, हर जगह आपको मैस मीडिया वो इसी हवाले से मिलता है। जी। Okay, so thank you, Hamza. As you said, media has, definitely evolved over the years, and there are definitely many different outlets through which we get our information and even entertainment. So thank you for explaining in depth the role of media. Apart from that, मुझे बताएं कि हम आम इंसान थे, why is it so important to understand media and like the complexities of it? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें समझने की क्यों जरूरत है। देखिए, हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने मीडिया हाउसेज हैं, जितनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई इनकी कहीं भी बात दैट इज नॉट अ फाइनल टॉक, दैट इज ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम अ ह्यूमन बैकग्राउंड। एंड व्हाई इज दैट बीइंग क्रिएटेड अ ह्यूमन बैकग्राउंड? कि मीडिया मटेरियल्स जो है, यानी जो कंटेंट आप देखते हैं, दैट इज कमर्शियली इन्फ्लुएंस, दैट इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। कोई भी चीज जो है उनकी उर्फ आखिर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये देखें कि हमारे सोशल मीडिया में लोग कोई मैसेज शेयर करते हैं तो कहते हैं कि जी इसको शेयर करें 10 लोगों को तो आपको इतना सवाब मिलेगा, और हमारे लोग करते हैं। द प्रॉब्लम अगेन लाइज इन बिटवीन द एजुकेशन, कि हमारे यहाँ एजुकेशन का बड़ा फुकदान है, फ्रंट लाइन एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कौम तालीम की बहुत कमी है,
उसकी वजह ये कि लिटरेसी रेट हमारा बड़ा बेसिक है और हमारा बड़ा लोअर लिटरेसी रेट है। हम अर्बन एरियाज को, कराची को, लाहौर को और मेजर सिटीज को देखे लिटरेसी रेट को गेज नहीं कर सकते। हमारी एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से मुंसलिक है और वो लोगों के अंदर शाऊर बहुत कम है। ये वो कौम है जो कीमे वाले पराठे के ऊपर वोट दे देती है। ये प्रॉब्लम ये है, उनके लिए ये मीडिया का एक राइट डायरेक्शन दिखाना बड़ा क्रूशियल है और उन आम लोगों को ये बात समझने की बड़ी अहमियत है और बड़ी जरूरत है कि वो ये समझें कि व्हाट लाइज एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज मटेरियल्स आर कंस्ट्रक्टेड। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक मीडिया हाउस के साथ मुंसलिक था और एक कंटेंट एयर हुआ। उस कंटेंट के ऊपर बड़ा एतराज आया। वो एतराज आया कि मैं आपसे एग्जांपल भी देता हूँ कि अब तक के साथ एक शो प्राइम टाइम का चला करता था, उस वक्त मैं इनके साथ मुंसलिक था, कि उन्होंने कहा जी ये तो आप बड़ा बैकग्राउंड में बड़ा एक प्लांटेड शो होता है। तो उस एडवर्टाइजर का इतना प्रेशर था कि दैट चैनल हैज टू कट डाउन। तो कमर्शियल प्रेशर्स भी बड़े क्रूशियल है क्योंकि एडवर्टाइजर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बड़े एडवर्टाइजर्स हैं, फ्रंट लाइन के एडवर्टाइजर्स हैं, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो प्रॉक्टर गैम्बल हो, जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका कई भी बात है। इवन छोटे के इन्वेस्टर्स जो आपके साथ आपके पार्टनर्स इन छोटे चैनल्स के अंदर, वो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जब इन्फ्लुएंस करते हैं किसी डिसीजन को और किसी बात को, तो चैनल बड़ा बाउंडेड होता है। इसी तरह हमने ये भी सुना, और ये बड़ी कॉमन बात है और यहाँ काफी लोगों को इस बात का अंदाजा भी होगा कि people commonly say that the channels are the parties to the different political parties. For example, it is being commonly said, it is no reluctant to say that ARY is being more tilted in the past towards BTI, where Jio was more towards the Noon League. So it was a very common layman talk कि यार नजर आता है। इसी तरह ग्लोबली हम देखें तो फॉक्स की जो यूएस के अंदर जब इलेक्शंस थे तो फॉक्स जो था वो टिल्टेड टुवर्ड ट्रम्प था और CNN जो था वो टिल्टेड टुवर्ड हेनरी क्लिंटन था। तो इसी तरह ग्लोबल साइड्स ऑफ द मीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक ह्यूमन और एक लेमैन के लिए बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी इन्वायरमेंट्स हैं, जितना एरिना है, उसके अंदर पॉलिटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आज आप ये देखें कि आप इसी मीडिया की वजह से अप टू डेट हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्फ्लुएंस करती है और सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया का रोल एक जो जिसलिए मीडिया इंट्रोड्यूस किया वो कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया कि ग्लोबली आप एक कल्चर को देखते हैं। आज आप देखें कि इर्तिगल का बहुत ज्यादा एक कंटेंट पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इर्तिगल देखना है, तो एक कल्चरल एक रिफ्लेक्शन ऑफ द मुस्लिम हिस्ट्री पास्ट और दैट इज बीइंग रेटेड टॉपली अलॉन। यूट्यूब के ऊपर देख लें जिन फॉरम्स के ऊपर वो एयर होता है, नेटफ्लिक्स के ऊपर देख लें जहाँ वो एयर होता है। जिन लोगों के पास ये एक्सेस नहीं है वो पाकिस्तान टेलीविजन क्योंकि इसको एयर कर रहा है, उस पर ऊपर देखते हैं तो वी सॉ अ वेरी गुड वेरी पीक रेटिंग ऑन दैट ट्रेंड। तो हमने ये चीजें देखी हैं कि एक कल्चर सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखें आप किसी कंट्री, इंदिरा गांधी की बड़ी मशहूर कोट है एग्जैक्टली कहती थी, इफ यू वांट टू कॉन्कर अ नेशन यू हैव टू कॉन्कर इट्स कल्चर एंड द 50% नेशन विल इटसेल्फ कॉन्कर्ड। तो रीजन बीइंग इफ यू वांट टू कॉन्कर एनीबॉडी तो आप अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं और कल्चर रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा कॉमन जोक होता है आजकल क्योंकि चाइना हैज बीन इंटीग्रेट किया उन्होंने इंडियन टेरिटरी के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज की तरफ से, तो वो एक कॉमन जोक हमें बड़ा मीडिया के अंदर नजर आता है कि जी हम जो है फ्रंट लाइन पे जो है क्योंकि इंडियन आर्मी हैज फेल्ड, जो एक कॉमन परसेप्शन पाकिस्तान, क्योंकि ये मीडिया फ्रेमिंग्स होती हैं, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि ग्लोबली इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एज टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर। क्योंकि जो बॉलीवुड का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, हम अपने मुल्क पे देख लें कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर का। इंडियन कंटेंट बैन होने के बावजूद हमारे पास DTHs मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं, उसके खिलाफ एक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, इंडियन प्रोडक्शन क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है एंटरटेनमेंट की, जो एक फैक्ट है, तो लोगों की ड्रामेटिक व्यूअरशिप आती है। पहले केबल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि आपको मुसलसल इंडियन कंटेंट मिला करता था, इंडियन चैनल्स के इन्फ्लेक्स मिला करता था। वो लेटर ऑन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया तो केबल ऑपरेटर को स्ट्रिक्ट एक प्रेशर आया तो वो बंद किया गया, वरना एक कॉमन था एक इंडियन, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट एवरीबडी इज हंग्री फॉर द क्वालिटी कंटेंट। तो जो लर्निंग है कॉमन मीडिया का, जो सवाल है आपका कमिंग बैक टू कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कल्चर सीखते हैं, आप डायमेंशन सीखते हैं। आज आप देखें कि मीडिया के अंदर ही एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी जो कि वीलॉगिंग है। Vloggers हमें बहुत जगह नजर आते हैं। We used to see number of different leading vloggers producing the content for the digital platforms because क्योंकि एक बड़ा मेजर शिप एडवर्टाइजर का स्पेंड का भी टूवर्ड्स डिजिटल गया है, जो प्रीवियस 5-6 साल पहले नहीं था, आज वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जहां प्रिंट और रेडियो डिमिनिशिंग मीडियम हो गए हैं और लोग छोड़ते चले जा रहे हैं और रेडियो इंडस्ट्री जहां खत्म हो जा रही है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑन द मैसेज नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ एंड दे माइट शट डाउन देयर सर्विसेज एंड देयर ट्रांसमिशंस and their broad waves
in a coming few months, but एक नया फॉर्म डेवलप होता है क्योंकि प्रोडक्ट इनोवेशन जिस तरह दुनिया भर में इनोवेट करने का दौर है, अगर आप बदलेंगे नहीं, आप तब्दील नहीं होंगे, तो what will happen that you will subside, you will expire. You need to continuously innovate with the passage of time. तो जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, इसलिए मीडिया के अंदर भी कंटेंट इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कंटिन्यूअसली ब्रिंग अप द न्यू कंटेंट. हमारे यहाँ न्यू कंटेंट का बड़ा प्रॉब्लम है. अभी इर्तिकल के अंदर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल लोग हैं, उनको बड़ा इतराज था कि जी ये तो लोकल इंडस्ट्री को आप मार रहे हैं क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंटेंट लाते हैं, उसको डब करते हैं और उसको ऑन एयर करते हैं. तो व्हाट्स हैपनिंग कि जो लोकल टैलेंट है, एक्टर्स है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे विल नॉट गेट अ वर्क क्योंकि देखिए ये बड़ा इजी मीडियम है. ये ड्रामा कोई नया ड्रामा नहीं है, इट्स बीन 5-6 years के ये पुराना ड्रामा है, इसको अब डब होकर यहाँ पे एयर हो रहा है. वो 5-6 साल पुराना जो कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपायर हो गया है, आपने उसको बहुत सस्ते दामों पे लिया, पर यहाँ पे उसको डब किया और उसको एयर किया, एंड यू गेट अ सुपर डुपर रेटिंग, यू गेट अ सुपर डुपर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स, एंड इट्स वेरी इजी. जहां और जबकि कंपैरेटिवली आप लोकल उसको देखें, आप लोकल इंडस्ट्री को देखें, प्रोडक्शन हाउस उनको मेहनत करनी है, उनको लोकल टैलेंट को इन्फ्लक्स करना है और फिर प्रोड्यूस करना है कंटेंट. तो ये एक हेल्दी है. इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है फॉर द एक्टर्स, फॉर द प्रोड्यूसर्स, और मतलब एक पूरी इंडस्ट्री. इंटरनेशनल कंटेंट प्लेस करना बड़ा आसान है, लेकिन इट्स अ बिग हिट टुवर्ड्स द लोकल इंडस्ट्री, which the government also need to realize, and the production houses also need to realize, because they have to come up with a good content. तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका पार्ट है. दूसरी बात ये है कि देखिए एथिकल डायमेंशन समझने का आपको मौका मिलता है. हम क्योंकि इंटरनेशनल मीडियम भी देखते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन कल्चर के अंदर जब बात होती है तो बड़ी डिफरेंट इमेच्योरिटी नजर आती है. फिर हम कंपैरेटिवली अपने लोकल पाकिस्तान मीडियम ऑफ द मीडिया को देखते हैं, तो वी से यस कि वी आर मैच्योर इनफ, बट यस द इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक. इस पे बात करेंगे तो काफी लंबी चली जाएगी, लेकिन जो बेसिक है कि अंडरस्टैंडिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए इन्स एंड आउट्स क्या है, कौन, क्या ये बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये बात कमर्शियली मोटिवेटेड है, इसके पीछे एजेंडास क्या है, व्हाट्स बिहाइंड इट. वी शुड, एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ इट. जी जी. And like adding on to, you know, what you said about how media has the power to influence our thoughts. So I feel like, you know, it's very important to also be careful, because this influence can sometimes be positive and negative. So you just have to be careful about that as well. So Hamza, so as someone who has very little knowledge about media, I'm hearing nowadays that, you know, media is in crisis. So can you elaborate a bit on that? What does it exactly mean that the media is in crisis? देखिए ये आजकल इट्स वेरी कॉमन टू हियर एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग के इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली मीडिया इंडस्ट्री का जी बेड़ा गर्क हो गया. द लेमैन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि द क्राइसिस इन मीडिया इंडस्ट्री, इट हैज अ मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देखिए हम ये समझें कि बहुत से पहलू हैं, उन पहलुओं ने इस मीडिया इंडस्ट्री को आज इस नहेज पे पहुंचाया है जहां एम्प्लॉइज ऑफ द डिफरेंट मीडिया हाउसेज आपको प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए नजर आते हैं. सोशल मीडिया के ऊपर हमें एक अनएम्प्लॉयमेंट इन द मीडिया हाउसेज की आवाजें बहुत जोरदार तरीके से सुनाई दी जाती हैं. तो इनके पीछे जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, बिफोर कमिंग टू द गवर्नमेंट एस्पेक्ट, वो एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है. आप देखिए आज हमारे मुल्क में जो शराय इन्फ्लेशन है, जो परसेंट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज है, दैट इज मैसिव. और वो जो कुछ साल पहले 5-6% थी, आज वो कहाँ जाके खड़ी हो गई है, वो अबव 10%, कुछ 15% भी मुझे सुनने को मिल रहा था कि जी इसको भी क्रॉस कर रही है. तो जब इतनी मैसिव इन्फ्लेशन आई और ग्लोबल ब्रांड्स, स्पेसिफिकली देखें जो बेसिक स्पेंडर्स कौन है, बहुत से छोटे जो ब्रांड्स पाकिस्तान, देखें जो हमारे यहाँ जो एडवर्टाइजिंग का मॉड्यूल है वो कैसा है जी, चैनल किस तरह पैसा कमाते हैं. वो 2 तरीकों से पैसा कमाते हैं, कि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि पहला तरीका जो पैसा कमाने का और किसी मीडिया हाउसेस को रन करने का है, दैट इज दैट द मनी दैट व्हिच इज गेटिंग इज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सेल्स. which is a spend of the advertiser being spent in different brands advertising on the channel, and against it the rates are being done, the live RPMs, the rate per minutes are being sold, and the amount is being again gained. और दूसरा जो सबसे बड़ा दुनिया भर में एक मॉडल होता है पैसा कमाने का जो चैनल के लिए, वो होता है चैनल सब्सक्रिप्शन का, कि आपको कोई चैनल देखना है, then you have to pay for that amount, the subscription even. तो चैनल के लिए 2 इन स्ट्रीम ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द मनी है जो आ रहा होता है. क्या वो आ रहा होता है कि पहला पैसा आ रहा है इनफ्लक्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम अमाउंट जो कि एडवर्टाइजमेंट से, और दूसरा लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ जो खाली एडवर्टाइजमेंट के ही वाहिद मॉड्यूल है और मॉडल है जो
पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि तमाम चैनल्स जो पैसा कमाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट सेल के अलावा किसी जगह से नहीं कमा सकते, सिर्फ ब्रांडिंग से ही वो पैसा कमा सकते हैं। दूसरा एक मीडियम है जो कि हम चलो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो अंडर द टेबल वाला मीडियम था कि हमने देखा कि डिफरेंट इल्जामात लगे न्यूज चैनल्स के ऊपर कि जी ब्लैकमेल करते हैं, और कुछ जगह पे प्रूवन भी हुआ, कुछ जगह पे नहीं भी प्रूवन हुआ। दैट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिबेट, और वो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डिबेट है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन इन 7-8 सालों के साथ जो मैंने न्यूज चैनल में भी गुजारे, मैंने ये देखा कि ये बड़ा कॉमन है कि न्यूज अंडर द टेबल वाला इल्जामात एंकर्स के हवाले से भी लगा, बहरिया टाउन के हवाले से भी बड़े सवाल खड़े हुए कि उन्होंने चैनल्स के ऊपर बड़ा पैसा लगाया और अपने प्रोजेक्ट्स को ऊपर किया। ये एक इल्जामात थे, कुछ प्रूवन हुए नहीं हुए, दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल ऑफ इट। लेकिन इन स्ट्रीम हुआ क्या, एक तो ये दो मॉडल्स हमने समझ लिए। अब होता क्या है कि क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट है, तो जो बड़े ब्रांड्स थे, जो लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स थे, उनके स्पेंड्स ड्रामेटिकली कट डाउन हो गए। जब उनके ब्रांड्स स्पेंड्स कट डाउन हुए तो उनके पास दो ऑप्शन हुए। वो क्या था कि जो कॉस्ट, एग्जांपल हम पैम्पर्स की बात ले लेते हैं, बेबी डायपर्स की बात लेते हैं, पैम्पर्स कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर द ब्रांड, लेकिन डायपर्स आते थे इंपोर्टेड, कंपनी मंगाती थी, उसको कॉस्ट पड़ती थी फॉर अ जंबो पैक लेट्स से 1500 रुपए। लेकिन हुआ क्या, विद दिस इन्फ्लेशन जो ग्लोबल प्राइस राइज हुआ, उसकी कीमतें बढ़ के 2400 रुपए हो गई। अब उसको यहाँ पे या तो 2700 रुपए का बेचना है, या फिर उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी अपने ब्रांड को लोकल कंपटीशन से बचाने के लिए। तो हुआ क्या कि उन easiest way for any organization to survive is to cut down the marketing spends। शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स का कट जाता है और वो सर्वाइवल के अंदर लग जाता है, वो डिफरेंट और एवेन्यूज के ऊपर री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे सर्वाइवल बन जाता है। तो इसी तरह हमने लीडिंग ब्रांड्स को देखा कि उनकी जो एनुअल स्पेंड थी वो ड्रामेटिकली कट डाउन हुई, उसके अंदर 15 से 20% का एक ड्रामेटिक डिक्लाइन हमने रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से चैनल्स के ऊपर और स्पेसिफिकली छोटे चैनल्स के ऊपर ये बहुत बड़ा, उनका तो डिपेंडेंसी उसी के ऊपर थी, तो उनको एक मेजर क्राइसिस फेस करना पड़ा। और उसकी वजह से हुआ क्या कि मेन स्ट्रीम मीडिया के डिफरेंट वर्कर्स, वी सी देम प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द प्रेस क्लब, वी सी देम प्रोटेस्टिंग ऑन द डिफरेंट एवेन्यूज, और एक पूरी वेव चली मीडिया क्राइसिस की। फिर एक बड़ा दूसरा अहम रोल था, वो सरकार का रोल था कि हमने सरकारी इश्तिहारात को टेलीविजन पे बहुत, इस खास तौर पे 2018 से पहली हुकूमतों के अंदर हमने सरकारी इश्तिहारात बहुत ज्यादा देखे, जिसमें डेमो का इफ्तिताह या डेमो का प्रोजेक्ट या बिजली का प्रोजेक्ट या हुकूमत की अपनी एक जो वावा की एक कैंपेन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा हमने देखी। तो वो बहुत ज्यादा राइज था, गवर्नमेंट का स्पेंड था टुवर्ड्स प्राइवेट चैनल्स। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि जी ये तरीक़ेकार था एक तरह से ब्राइब करने का न्यूज चैनल को और उनकी डिपेंडेंसी। अच्छा, उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज और भी थी कि मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि फॉर एग्जांपल जो कमर्शियल रेट्स थे, सरकार उससे कई जगहों पर में 2000% 2000% ओवर चार्ज करती थी। वो किस तरह करती थी, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लेमैन, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि एक चैनल है ABC, विदाउट नेमिंग एनी चैनल, उसका कमर्शियल रेट 10,000 रुपए था, एक यानी एक लोकल क्लाइंट के लिए, एक प्राइवेट क्लाइंट के लिए वो 1 मिनट 10,000 रुपए का बेचा करता था, लेकिन सरकार को वो वही रेट 2.5 लाख रुपए का बेचता था, और गवर्नमेंट नोज इट एंड गवर्नमेंट कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन इट। हुआ क्या, इससे बड़ा इन्फ्लक्स ऑफ द अमाउंट हमने देखा जो एक मीडिया चैनल और मीडिया हाउसेस के ऊपर इन्वेस्ट होता रहा, और मल्टीपल अमाउंट सरकारी तौर के ऊपर प्राइवेट चैनल्स को सपोर्ट करता रहा, जिससे इंकरेजमेंट मिली नई इन्वेस्टमेंट को भी। उनको लगा कि सर इसमें तो बड़ा पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़े इश्तिहार चलाती है। 2018 के बाद एक पॉलिसी चेंज आया और सारे चैनल्स के रेट रीडू हुए, और उस रीडू को वो एक्चुअल रेट से भी कई जगहों पे नीचे ले गए कि जी पैसा चाहिए तो पहले हम 2.5 लाख रुपए देते हैं, अब आपका तो एक्चुअल रेट ये था, हम 70,000 रुपए दे सकते हैं। और ये DGPR या डिफरेंट इदारों ने इस रेट को रीडू किया, जिससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट स्पेंड उनके पास रिकॉर्ड होता था वो ड्रामेटिक डिक्लाइन हुआ, और इवन इश्तिहारात की जो इन्फ्लक्स थी और जो फ्लो थी वो हमने देखा कि बहुत ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर रहा गवर्नमेंट की तरफ। तीसरा, डिपेंडेंसी टुवर्ड द डिजिटल मीडिया। क्लाइंट ने अपने टेलीविजन स्पेंड्स के साथ साथ डिजिटल स्पेंड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया, जो पहले एवेन्यूज पे इन्वेस्ट नहीं होता था। एवरी ईयर नाउ द डिजिटल एस्पेक्ट इज ग्रोइंग, डिजिटल फॉरम्स आर ग्रोइंग। तो ये एक और रीजन थी जो हमने क्राइसिस देखा।
फिर उसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं कि इससे हो क्या रहा है कि न्यूअर टैलेंट को, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर मीडिया पढ़ा रही हैं और स्टूडेंट्स जो है वो आना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर इज टुवर्ड्स द मीडिया। अब एक ऐसा मीडिया जहां हमने इतना ज्यादा बूम देखा, नंबर ऑफ चैनल्स का ड्रामेटिक इंक्रीज देखा, जहां पे ऐसा मुल्क जहां पे 50 तक तो सिर्फ अगर 1 to 50 तो सिर्फ न्यूज चैनल्स हैं हमारे पास, मोर देन 100 प्राइवेट चैनल्स थे, उन चैनल्स को अब ड्रामेटिकली हम बंद होता हुआ देख रहे हैं या उनको इतना क्राइसिस में देख रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्सेज रिगार्डिंग मीडिया, ये डिस्करेजमेंट भी है, ये एक बड़ा फेयर फैक्टर भी है उन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि देखें रियलिटी एक वो है जो यूनिवर्सिटीज बता रही हैं, जो दिखा रही हैं कि बड़े सब्ज बाग हैं आगे, ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड वेरी मच इनटू लास्ट 2-3 इयर्स एंड द थिंग्स हैव बिकम वेरी चैलेंजिंग एज वेल। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट आंसर है जो हमने देखा। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि जी हमें एक तो इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की वजह से फर्क आया, प्राइवेट एडवर्टाइजर ने अपना पैसा कम कर दिया, डिजिटल फॉरम्स का ग्रोथ हमने बहुत ज्यादा देखी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने सामने नोट डाउन की, जो सबब बनी ये प्राइवेट चैनल्स को क्लोज डाउन होने के लिए या फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। जी इंसिया। Okay, so thank you for elaborating on that. So Hamza, if we move a bit away from traditional media right now and take this conversation a bit towards sports, since you know you also have experience working in the sports broadcasting sector. If we talk about sports exactly, how many sports channels are there, and how successful do you think the future of sports broadcasting is? Yeah, देखिए, when you talk about the sports media and specifically the traditional and the sports media available in Pakistan, specifically the Pakistan-based sports media, so since start we have actually only, right now as we are talking, we have only officially 3 sports channels, which is number 1 is a government in the state-owned channel, which is the Pakistan Television. Number 2 is 10 Sports, and number 3 is Jio Super. 10 Sports is a Sony-owned international Japanese Sony-owned company. Number 1 is a Pakistan and number 3 was a Jio Super. अब मैं जियो सुपर को वॉज इसलिए कह रहा हूँ कि जियो सुपर टाइम हैज चेंज। जियो सुपर ने आखिरी मर्तबा, देखिए एक बड़ा अच्छा लोकल इनिशिएटिव था जियो की जानिब से कि उन्होंने एक लोकल मीडिया के अंदर पीटीवी स्पोर्ट्स से पहले जियो सुपर आया, और स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए जियो सुपर के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट थे। जियो सुपर ने जो चैनल लॉन्च किया दैट वाज अ स्पोर्ट्स न्यूज चैनल, क्योंकि अगर आप में से किसी को यहाँ पे याद हो कि जब हम जियो सुपर ट्यून इन करते थे तो हम देखते थे कि जियो सुपर के नीचे एक टिकर भी चल रहा होता था जो स्पोर्ट्स की डिफरेंट खबरें उसके ऊपर लिखी हुई आ रही होती थी, जबकि ग्लोबल स्पोर्ट्स चैनल्स में ऐसा नहीं होता। आपने कभी इवन पीटीवी स्पोर्ट्स पे या ईएसपीएन पे या किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैनल पे कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि टिकर चल रहा हो। तो जियो का मॉडल थोड़ा डिफरेंट था, वो स्पोर्ट्स न्यूज चैनल था और स्पोर्ट्स लाइव ब्रॉडकास्ट भी करता था। जियो ने आखिरी मर्तबा सबसे बड़ा जो इवेंट किया वो 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में किया। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है ना, वो दो मीडिया के दो आंसर हैं। एक कहलाता है CNS which is a cable and satellite television channels, एंड दूसरा कहलाता है टेरेस्ट्रियल। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन है वो टेरेस्ट्रियल बेस्ड है, यानी आप कहीं भी दुनिया पाकिस्तान के किसी कोने में भी हैं और एक छोटा सा एंटीना लगा के प्लग इन करें अपने टेलीविजन के अंदर तो यू स्टार्ट गेटिंग अ ट्रांसमिशन थ्रू एन एयरवेव्स। दूसरा जो मॉडल आजकल अब वो डिमिनिशिंग है, वो इन एक्चुअल हमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन हाँ हमारे बचपन के अंदर खास तौर पे जो लोग इस वक्त मिड 30s या 40s में उन्होंने पास्ट में हमेशा जरूर देखा है अपने बचपन में कि टेलीविजन पीटीवी आया करता था और पीटीवी स्टार्ट हुआ और हम हर वक्त अपनी छत पे जाके चैनल या इंडोर टेलीविजन का एंटेना होता था उसको रीडू करते रहते थे या सेट करते रहते थे टू गेट अ बेटर पिक्चर। But again, the technology evolves and we see that the cable has been introduced. और केबल आ गया और घरों के अंदर आपको 100 से ज्यादा चैनल एक तार के प्लग इन में मिल गए, जिसके अगेंस्ट आप एक नॉमिनल अमाउंट एक केबल ऑपरेटर और द एरिया ऑपरेटर को देने शुरू हुए और आपको बहुत सारे चैनल मिल गए। अब जब स्पोर्ट्स एरेना की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का जो व्यूअर है, जो कॉमन व्यूअर है, वो सिर्फ जो फॉलो करता है वो क्रिकेट को करता है, आपको कहीं व्यूअरशिप नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा डिलेमा है किसी स्पोर्ट्स चैनल के लिए इस फॉलो करने के लिए। हमें एक SECA जो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस अपर क्लासेस हैं या कुछ पॉकेट्स के अंदर कुछ लोग हैं जो फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन इन द मैसिव स्केल फुटबॉल की व्यूअरशिप हमें कहीं नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है वो सिर्फ हमें क्रिकेट की मिलती है और क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है दैट इज मैसिव और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है। तो द प्रॉब्लम और द स्ट्रगल है वो ये है कि जो ब्रांड्स हैं they need to invest and they come into the ground to support the different forums.
हॉकी एक जमाने में कौमी खेल था, लेकिन आज कहाँ है? उन प्लेयर्स का हाल आप आके पूछें, उन प्लेयर्स की स्ट्रगल पूछें, क्यों नहीं हुआ? इंडिया के अंदर आप जाके देखें कि आपको नजर आएगा कि वो अपनी कबड्डी को कितना सपोर्ट करता है। हॉकी के ऊपर, कबड्डी के ऊपर उन्होंने एक स्टेट लेवल की एक इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बना दी और उन्होंने ग्रास रूट लेवल से उनको स्टार्स बनाया। यू नीड टू मेक पीपल स्टार। हमारे यहाँ स्टार क्या है? आप टेनिस स्टार देख लें, इसामुल हक ने अपनी बलबूते के ऊपर कहाँ तक गया, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली, आगे उसके बाद कोई स्टार नहीं मिला। जहांगीर खान, जानशेर खान स्क्वाश के अंदर एक बड़े नाम थे, उसके बाद स्क्वाश कहाँ चली गई? कहीं नहीं नजर आई हमें। नसीम एक रनर थी अभी रिसेंटली, वो बहुत ज्यादा वाइब में आई, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट थी पाकिस्तान की तरफ से, वो रन हुई किसी कंपटीशन के अंदर। इनिशियली स्पोर्ट्स चैनल्स ने भी, फ्रंट लाइन स्ट्रीम मीडिया ने भी उनको सपोर्ट किया, लेकिन कहीं सपोर्ट नहीं मिली। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को देख लें, ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन इज वेरी ह्यूज, वन ऑफ द वेरी मैसिव स्पोर्ट्स, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, वेट लिफ्टिंग के हवाले से, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती। तो देखिए, स्पोर्ट्स की जहां बात करते हैं ना, स्पोर्ट्स चैनल के आउटलुक की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की जंग है। एक फेस्टिवल जो रिसेंटली पाकिस्तान में होता है, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग, जो पीएसएल के नाम से बहुत ज्यादा देखी जाती है, देखें उसको कैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसको अंदर ब्रांड्स घुसे, उसके अंदर टीम ओन की, हर बंदे ने, हर टीम के बंदे ने अपने अपने हिस्से का हक अदा किया। तो हमने उस हक अदा करने के नतीजे में क्या देखा कि एक बड़ी लीग बनी, और पीएसएल नाउ रिसेंटली 5th पीएसएल हैज बीन पास्ड रिसेंटली, एंड हाउ बिग दैट इवेंट वाज एंड हाउ बिग दैट ब्रांड इज बिकमिंग विद द पासिंग ऑफ एवरी ईयर। तो लोगों ने, एक अकेले बस के बंदे की बात नहीं थी, जब सारे लोग जुड़े, जब कंपनीज जुड़ी, जब ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी और उन्होंने अपना हिस्सा डालना शुरू किया, तो स्पोर्ट्स के उस क्रिकेट पीएसएल के फेस्टिवल का एक इनकाज हुआ। और शुरू में जब पीएसएल सीजन 1 होना था, तो पीपल डू नॉट ट्रस्ट इट, लोगों को बड़े डाउट्स थे इसके ऊपर कि कैसे पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है। और इनिशियली इसका कोई मार्केट, क्योंकि हम सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं, हमें ये अंदाजा हुआ, हमने लोगों से जब बात की, तो पीपल वर वेरी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इनटू पीएसएल। आज वही पीएसएल जो है 15-15 लाख, 14-14 लाख रुपए का मिनट यहाँ बेखा की डिमांड की जाती है और बेचा जाता है, और उसका लेवल ही चेंज हो गया। मतलब इट्स अ ब्रांड्स ड्रीम टू इन्वेस्ट इन पीएसएल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है दैट हैज बीन ग्रोन इमेंसली। इसी तरह हम पाकिस्तान के मैचेस को देख लें, तो हम 10 स्पोर्ट्स के अंदर नजर आते हैं, केबल एंड सैटेलाइट पे पाकिस्तान टेलीविजन का एक है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन को जब आप ट्यून करते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। आप उनकी स्क्रीन क्वालिटी को देखें, एक स्टेट ओन्ड टेलीविजन जिसकी बड़ा किरदार है, जहां का मैनेजिंग डायरेक्टर एक 3 से 4 महीने के पीरियड के बाद चेंज कर दिया जाता है, वो कैसे चेंज होगा? स्टेट लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को, उन जिम्मेदारों को बड़ा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है उनकी कि वो एक ऐसे बंदे को नॉमिनेट करें जो डिलीवर करे, स्टेट ओन डिलीवर करे। क्योंकि देखिए, प्राइवेट चैनल्स का रोल तो इस अपनी मनी मेकिंग से ज्यादा है। हम तो चाहेंगे, हमारी कंट्रीब्यूशन हमेशा होती है, जियो सुपर की कंट्रीब्यूशन हमेशा थी, लेकिन कि वो सपोर्ट करें व्यूअरशिप, लेकिन व्यूअरशिप गेन नहीं हो पाती। उसकी वजह ये कि वी नीड टू मेक द थिंग्स मोर कलरफुल। जिस तरह क्रिकेट कलरफुल है, उसी तरह इन लोगों को भी, दूसरे ब्रांड्स को भी इसकी तरफ इन्फ्लो लाना चाहिए और उन चीज़ों को कलरफुल बनाना चाहिए। अपनी फुटबॉल को कॉलेज से, स्कूल से बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ द स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और हम सारे क्रिकेट फैंस हैं। लेकिन क्रिकेट क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, cricket is a people in Pakistan is a cricket die-hard fan. Recently अभी देखें, people are looking up to Pakistan England series which is about to start in August, where there are 3 test matches and 3 T20s which are coming up. So people are dying to see those matches, because due to COVID it's been a very long break for the sports as well. So हमें और हमारे लोगों को, हमारे ब्रांड्स को ज़रूरत है इस बात की कि वो रियलाइज करें इस वक्त सिचुएशन को, और वो इन्वेस्ट करें दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी, और हेल्प आउट करें उन एथलीट्स को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये टारगेट शूटिंग्स ग्लोबली, एथलेटिक्स देखें ग्लोबली, जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं, बीजिंग ओलंपिक्स हुआ, 50 से ज्यादा मिनिमम मेन स्ट्रीम गेम्स है जो वहाँ हो रहे हैं, उनमें से कितनों में हमारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं, किसी में भी नहीं करते हैं। शार्प शूटिंग में मैं एक साहब को जानता हूँ, वो पाकिस्तान, एक्स पाकिस्तान नेवी है, बड़ी नॉमिनल सी एक नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो अभी रिसेंटली नेपाल के अंदर साउथ एशियन गेम्स हुए, तो वो जाके मल्टीपल गोल्ड पाकिस्तान अपने बलबूते पर लेकर आया। तो वो लेकर आ गए, गोल्ड लेकर आ गए, और फिर गायब हो गए। तो उनको पकड़ें, उनको स्टार बनाएं, उनको वो इज्जत दें जिसके लिए वो मुल्क भर में नाम रोशन कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स आउटलुक इन पाकिस्तान इज वेरी चैलेंजिंग। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिगर ब्रांड्स to contribute on this side as a corporate social responsibility, which they claim to be,
पामोलिव एक ब्रांड है जो सपोर्ट करता था, मैंने कुछ टाइम पहले तक, कि वुमेन्स स्विमिंग होती है, तो उसको बड़ा उनकी वहाँ पे उनकी कोई साहब थी जिनकी जो बड़ा उनको सपोर्ट किया करती थी कि जी वुमेन्स स्विमिंग के ऊपर भी करें। तो इस तरह एथलेटिक्स के डिफरेंट अनासर हैं, डिफरेंट खेल है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन बड़ा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन एवरी ब्रांड मेकिंग द मनी नीडेड, स्टेट सारा पैसा नहीं लगा सकती। हाँ, स्टेट डायरेक्शन दिखा सकती है, स्टेट हेल्प आउट कर सकती है, स्टेट ब्रिज बन सकती है उन दो इदारों के दरमियान, उन ब्रॉडकास्टर और ब्रांड के दरमियान, क्योंकि जब वो ब्रिज का रोल अदा करेंगी और ये ब्रांड्स इंटरेस्ट लेंगे और आप अपने लोगों को इज्जत देंगे और स्टार बनाएंगे, तो हमारा स्पोर्ट्स एरेना बहुत चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ क्रिकेट डिपेंडेंट स्पोर्ट्स एरेना नहीं रहेंगे। आज फुटबॉल पे हमारे पास, हम इस वक्त, आपको मैं एग्जांपल दूं कि ऑन 10 स्पोर्ट्स वेयर वी शो सीरिया, वी शो ला लीगास, हम यूरोपिया कप, यूएफए लीग्स, लेकिन ब्रांड्स आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो इन क्लब्स के फैंस हैं, इंटरनेशनल के अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, तो हम लोकल को क्या सपोर्ट करें? जब तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स एरिना के हवाले से हम कॉमनली देखते हैं। जी। Okay, so Hamza, picking up your point about cable systems, जो आपने अभी cable systems की बात mention की थी, I have one last question for you. So we keep on hearing about cable systems and its role in starting a new channel. So can you talk a bit more about that? देखें, अब क्योंकि सवाल के हम अगर डायमेंशन एक बिल्कुल चेंज हो रही है, लेकिन एक बड़ी क्रूशियल डायमेंशन है, वो है कि केबल के हवाले से कि केबल में क्या क्या तरीक़ेकार हैं और क्या मसाइल हैं जो हम केबल्स में नॉर्मली फेस करते हैं या देखते हैं। देखिए, कोई भी बंदा नया चैनल लाता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और एक अच्छी तरीके से लॉन्च करना चाहता है, तो हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिस पर मैंने अभी रिसेंटली बात की, वो नहीं अवेलेबल, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ DTHs अवेलेबल नहीं है। इवन रेटिंग सिस्टम जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि यार बड़ी हाई रेटिंग आ गई, बड़ी ये ऊपर रेटिंग है, इस वक्त जो इंडस्ट्री चल रही है वो इंडस्ट्री चल रही है कैंटार की बेसिस के ऊपर। एक सिस्टम है जो रेटिंग रिकॉर्ड करता है और जो जिसकी बेसिस के ऊपर तमाम एडवर्टाइजर एक्सेप्ट करते हैं, और उस क्योंकि हम यहाँ लेमन टर्मिनोलॉजी से चलना चाह रहे हैं, हम इसकी इन डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कैंटार की बेसिस के ऊपर एक रेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट होता है। आपको पता है कैंटार की जो सैंपल साइज है वो तकरीबन 2000 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली लगा लें, 2000 मीटर्स है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि मुल्क में क्या कौन सा चैनल ऊपर है, कौन सा चैनल नीचे है। इससे पहले गैलप सर्वे हुआ करता था और गैलप सर्वे की रिपोर्ट्स आज भी होती हैं, लेकिन उनकी वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर एडवर्टाइजर को जो थी वो मैसेज नहीं मिलती थी। एडवर्टाइजर को बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल उनको चाहिए होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है कि वो सोशो इकोनॉमिक किसको दिखाना चाहता है, किस एज ग्रुप को दिखाता है। तो गैलप सर्वे तो क्यूमुलेटिवली रिपोर्ट देता था, फंडामेंटली सोशो इकोनॉमिक वाइज या जेंडर वाइज या एज ग्रुप वाइज वो उतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती थी। तो कैंटार का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, रेटिंग सिस्टम पाकिस्तान में लाया गया, जिसपे बहुत सारे सवालात हैं, वो एक डिफरेंट एंगल हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब एक चैनल लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है केबल का, कि कैसे आप देखें कि बुकेज हैं केबल को, कुछ लोग कहते हैं, जाहिर है उनके, अब दोनों साइड की स्टोरी अलग है। आप केबल वालों से बात करेंगे, वो बोलेंगे जी हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, लेकिन आप एक चैनल के ओनर से बात करेंगे जो इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसको चैनल को अपने बुके में लाने। आपने देखा होगा तमाम न्यूज चैनल जब आप ट्यून इन करें टेलीविजन, वो एक साथ होते हैं, तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स एक साथ होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स एक साथ होते हैं, तो हम उसको अपनी टेलीविजन की लैंग्वेज में बुकेज कहते हैं कि टेलीविजन बुकेज में है। तो एक न्यूज चैनल को उस बुके में लाने के लिए इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो गया। इसको हम बोलते हैं चैनल पोजीशन, कि अगर आपका चैनल, आप कॉमन मैन के लिए जो शुरू में आ रहा है, आप टीवी ऑन करते हैं 1 से 30 तक अगर आपका चैनल आ रहा है, तो आपके लिए बड़ी आइडियल पोजीशन है, क्योंकि बहुत कम होता है मैं और आप 72, 73, 74 या लास्ट चैनल पे जाएं। हम उमूमन अपने चैनल की जो व्यूअरशिप है वो शुरू के चैनल्स में रखते हैं। तो केबल ऑपरेटर्स ने, कुछ लोगों का इल्जाम है कि ये पैसा मांगना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द चैनल पोजीशन, और इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो क्या हुआ कि वो आप देखें कि कभी उठा के अगर पैसा ना दिया जाए, जो ये सारी वो बातें जो चैनल के लोग क्लेम करते हैं, उनकी पोजीशंस को लास्ट पे फेंक दिया जाता है, आखिर में आ जाता है। वो चैनल जो कल तक 20 में था वो कभी 70 में नजर आता है, उनकी पोजीशंस को आगे पीछे किया जाता है उसकी वजह। और फिर केबल वालों के अपने बहुत से चैनल्स, आपने देखा होगा कि डिफरेंट केबल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि एक एंटरटेनमेंट चैनल का एक कंटेंट आ रहा था, उन्होंने साथ केबल ऑपरेटर्स ने अपने चैनल्स भी लॉन्च कर दिए और उस पर डिफरेंट इंडियन मूवीज, इंडियन कंटेंट, इंडियन शोज जो पहले हमने पास्ट में देखा वो लगा दिए। तो और फिर टिकर्स
जो हम एडवर्टाइजमेंट को देते थे वो केबल के ऊपर भी टिकर्स आने शुरू हो गए और बहुत बड़े बड़े ब्राइट टिकर्स हमने देखे, केबल ऑपरेटर रन कर रहा था। केबल इट्स itself a very long debate when we get into it। तो हमें नजर आता है कि the government need to show some attention towards it कि हमें proper DTH DTH आ रहा है लेकिन वो इंडियन DTH आ रहा है। हम एक प्रॉपर DTH अपना बॉक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जहां पर ये सारा एक अनासर खत्म हो जाए, उसमें केबल वालों को भी हम अपने कॉन्फिडेंस मिले, उनको भी पार्टनर बनाए, उनको भी शेयर होल्डर बनाए। हमारा मकसद किसी का रोजी छीनना या किसी का बिजनेस खत्म करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद एक कॉमन गोल है कि इस इंडस्ट्री को बेहतर करना, इस इंडस्ट्री को बचाना। और वो कैसे बचाया जा सकता है? वो क्यूमुलेटिव एफर्ट से बचाया जा सकता है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के बचाया जा सकता है। तो उनको लाएं, उनको बिठाएं और उनके साथ हम जो है इस चीज को आगे लेके चलें और DTH सिस्टम इंट्रोड्यूस करें ताकि नए इन्वेस्टर्स और नए लोग जो इस इंडस्ट्री में और टेलीविजन में आ रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो, उनके लिए भी आसानियां पैदा हो और वो भी इनकरेज हो और इन्वेस्ट करें और नए जॉब की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। कहीं डीमोटिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में ना रहें। तो ये एक पहलू है जो हम इसको अगर हम देखें तो डिस्कस करते हैं। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah, so thank you so much, Hamza, for giving us so much insight about the media industry. And with this, I would like to open the chat box for any questions that you guys might have for Hamza, and we'll take those. Okay, so we have a question. Should the government encourage more international channels to operate here, or should they encourage local channels? Like India, we can see a lot of localized versions of many international channels. बिल्कुल, देखें फॉर एग्जांपल इट्स ऑलवेज इंकरेजिंग, लेकिन कहीं भी डिस्करेजमेंट इज नॉट हेल्दी। More you bring in international channels, even it's an encouragement, and the competition will be healthy competition। देखें हर जगह it's helpful। आप encourage करें इंटरनेशनल चैनल्स को, आप मुल्क में आने दें। जब वो आएंगे तो आपका लोकल मीडिया जिसकी ये ब्रेड एंड बटर है, ही विल बी मच मोटिवेटेड। हाँ, उसको फैसिलिटेट जरूर करें। सरकार का ये रोल बड़ा अहम है कि वो इंकरेज करे उस लोकल इन्वेस्टमेंट को, अपने मुल्क के लोगों को, उनके लिए आसानियां पैदा करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। बट इट्स ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एवरीबडी के टू कम अप विद हेल्दी कंटेंट। जहां मैंने इस डिस्कशन की शुरू में प्रोडक्ट इनोवेशन के हवाले से बात की, तो वो इनोवेशन के लिए हम इंकरेजमेंट करें। आप अच्छा कंटेंट लोकल प्रोड्यूस करें तो क्यों नहीं बिकता? आप देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर ही आप देखिए आज तक पाकिस्तान टेलीविजन में ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस हुआ जो याद रहता है। 50-50 हम देख लें, इतनी पुरानी बात करते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। आप फैमिली फ्रंट एक ड्रामा सीरियल बनाया गया, हम लोग याद करते हैं। जियो से डॉली की आएगा बारात, वो हम सफर था। इस तरह के कितने कंटेंट्स हैं एंटरटेनमेंट साइड के ऊपर भी कि लोग इनकरेज करते हैं। मूवी सेक्शन में आके आप देख लें, वॉर एक फिल्म आई शान की, वो लोगों ने उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर देखा, उसके बाद भी 3-4 फिल्में ऐसी आई। देखिए जरूरत जो है वो क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, आपको उस इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल मीडिया से डरने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो देखें, वो कहते हैं ना जी कॉमनली कि अगर आप एक सोसाइटी ऑफ द डल पीपल में रहेंगे तो यू विल रिमेन डल। अगर आप इनकरेज करते हैं, आप दरवाजे खोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए अपने मुल्क में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस उनके पास जाहिर है, फैसिलिटीज डिफरेंट है, लेकिन गवर्नमेंट अपने लोकल टैलेंट को सपोर्ट करेंगी, लोकल लोग कम अप विद आइडियाज, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। मैंने इन 11-12 सालों में इस मीडिया हाउसेस में रह के देखा कि हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं और वो कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज हेल्दी टू ब्रिंग अप द न्यू चैनल्स। बिसाइड दैट, लोकल mainstream people will have their role. They need to come up with the good ideas, they need to innovate the products. When I say the product, I mean the content here. They need to continuously innovate the product for the betterment of the quality content for the viewers. Healthy viewership has to be developed. This is the part of it. Thank you. We have another question. How is this COVID-19 situation affecting the media industry currently? The current situation seems tough to bring the investors. देखिए, when you talk about the COVID condition, yes, the COVID condition is being really tough. The reason being the economy is shuttered. As being previously answered, when the economy is shuttered, the results and the impacts will be recorded everywhere because we all are interconnected to one way or another. So it's all interconnected. What we have seen during COVID is that the companies started to struggle. The sales started to decline. Recently, I was talking to one of the beverage guy, one of the leading beverage company of Pakistan. They
were telling us that their sales have been down towards 25%. And I said, yaar, kaise down ho sakti hai? Tum to ghar pe. He told me the restaurants are being closed down, the educational institutes are being closed down, the dine-in places, the chai ka dhaba was being closed down. तो एक बड़ी beverage company ने भी 25% तक अपनी sales को decline देखा. तो it's been, तो उसका impact कहाँ पर आएगा? अगर उसका sales 25% तक डिक्लाइन हुई है तो ऑब्वियसली जो टेलीविजन के ऊपर स्पेंड है उसके ऊपर भी बड़ा ड्रामेटिक और एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएगा. तो वो इम्पैक्ट हमने रिकॉर्ड होते हुए देखा. तो देखिए, कोविड हैज इम्पैक्ट एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड. यस, देयर आर कंपनीज दैट आर बीइंग इनटू द एसेंशियल आइटम्स, जो सैनिटाइजर्स बनाती थी, जो हेल्दी द मॉप्स बनाती थी, जो फ्लोर डिसइंफेक्शन इन्फेक्ट प्रोडक्ट्स बनाती थी, उन्होंने भी कुछ नई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की और नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दी, वर्टिकल इंटीग्रेशन की बल्कि, सॉरी, और वो नई प्रोडक्ट्स की लाइन में घुस गए और उन्होंने वहां से प्रोडक्ट्स को लेकर आए. तो कोविड हैज इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड. Or this situation will hopefully become better. The COVID is inshallah is not here to stay longer. Recent numbers I was seeing and going through, the graph has started to come down. Internationally हमने कुछ देखा जी, जिन मुल्कों में graph decline हुआ उन्होंने वापस भी pick up कर लिया जैसे ही उन्होंने international borders खोले. मगर with the passage of time I'm very hopeful कि if we are able to cover these 2-3 months, the thing will started to get better. और एक देखें, जब किसी चीज के अंदर रिसेशन आता है ना या डिक्लाइन आता है तो हेल्दी टाइम भी बहुत जल्दी उसका इंतजार कर रहा होता है. तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि हेल्दी टाइम इज अबाउट इन द कॉर्नर एंड वी विल सी सम गुड टाइम्स कमिंग अप. और कोविड की सिचुएशन यस चैलेंजिंग है, डिप्रेसिंग है फॉर एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड. जी. Okay, so the standards of local entertainment channels are far better than the media channels. Why do you think that is? Sorry, the channel of the local, can you comment again? The standards of local entertainment channels are far better than the media channels. And why do you think that is? देखिए, यह सवाल थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा कि the standard of the entertainment channels is better than the media channels. Entertainment is also a media. Yeah, I feel like they mean media as in like the news channels or sports channels. Yeah, sports channels. नहीं, या ये भी हो सकता है कि देखिए स्पोर्ट्स चैनल तो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, आपकी पहला पॉइंट आई विल एग्री टू दैट कि जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है वो न्यूज से बहुत बेहतर है. लेकिन देखिए, बट यू कैन नॉट कंपेयर द जॉनरास एनीवेयर. देखिए, एंटरटेनमेंट जॉनरा इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट. द कंपटीशन लाइज बिटवीन दैट जॉनरा. एक एंटरटेनमेंट चैनल का मुकाबला दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स तो बिल्कुल हो सकता है. ARY डिजिटल का हमसे हो सकता है, हम का जियो के साथ हो सकता है, जियो का A+ के साथ हो सकता है या किसी और के साथ हो सकता है. इट्स टोटल डिफरेंट जॉनरा. लेकिन इनका मुकाबला किसी स्पोर्ट्स चैनल से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम मीडिया इंडस्ट्री में इनको जॉनरास कहते हैं क्योंकि डिफरेंट जॉनरास है. रिलीजियस जॉनरा है, एंटरटेनमेंट जॉनरा है, स्पोर्ट्स जॉनरा है, न्यूज जॉनरा है. ये डिफरेंट जॉनरास हैं जो लाए करते हैं इन दिस इंडस्ट्री. तो देयर इज नो कंपैरिजन. बट यस, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट जॉनरा इज प्रोड्यूसिंग सम रियली वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट. और हमने देखा कि बहुत अच्छी व्यूअरशिप बिल्टअप हुई एंटरटेनमेंट में. यही वजह थी, जिस तरह मैंने अपनी डिस्कशन में पहले भी कहा, कि हमने इसी वजह से, क्योंकि पीपल वर फेड अप टू लिस्टिंग डेली दोज टॉक शोज, डेली दोज मिसकमिटमेंट. वो पॉलिटिशियंस आके रोज लड़ते थे, गिरबान में एक दूसरे के पकड़ते थे और वो चीजें उछलती थी. पीपल बिकम फेड अप टू इट. एक वक्त आया, ग्रोथ आया, लेकिन इट हैज स्टोन सम स्टेबिलिटी एंड देन डिक्लाइन. जहां एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल एंटरटेनमेंट के ऊपर स्पेंड भी बढ़ा, व्यूअरशिप भी बढ़ी, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हमने वी हैव सीन अ वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट इन द पास्ट. और इसके अंदर देखें, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ द इंप्रूवमेंट. एट एवरी टाइम देयर इज अ टाइम फॉर एन इंप्रूवमेंट and you have to continually innovate. I always say you need to continually innovate. Yes, this is a good sign that our entertainment industry, our entertainment people, our producers, directors are doing some marvelous job. But yes, you need to do more. And always do more ki jo rat hai na, wo hamesha it has to go on. Okay, so Hamza, thank you so much for providing us in-depth knowledge about the media industry. And with this, we can wrap up the session. And thank you so much for this fruitful discussion. And I would like to thank all the participants who joined us today. And if you want, you can leave us a message on our social media platforms if you want us to do a webinar on a specific topic. And thank you so much, Hamza.